Welcome students. Today we are going to solve some more illustrations related to the adjustment of cash flow statement. So let's start with the illustration number 55. In this illustration we have a balance sheet. In shareholder fund we have share capital 5 lakh rupees in previous year and 4 lakh 50,000 in current year. In reserve and surplus we have 1 lakh rupees in previous year and 2 lakh 55,000 in current year. In non-current liability, we have 10% debentures, 1 lakh rupees in previous year and 2 lakh rupees in current year. In the heading of current liability, we have trade payables, 46,000 in previous year and 1 lakh 33,000 in current year. And other current liabilities, 10,000 in previous year and 5,000 in current year. And short-term provision, that is provision for tax, 24,000 in previous year and 12,000 in current year. In asset side, in non-current assets, we have fixed tangible assets, 5 lakh 10,000 in previous year and 6 lakh 20,000 in current year. And 10% investment, 30,000 in previous year and 80,000 in current year. ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है, इनकी 10% प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू होगी वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी, दैट इज 3,000. करंट इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 8,000 इन प्रीवियस ईयर एंड 10,000 इन करंट ईयर. Inventories 1 lakh rupees in previous year and 90,000 in current year. Trade receivable 90,000 in previous year and 1 lakh 85,000 in current year. And cash equivalent 42,000 in previous year and 70,000 in current year. We have additional informations as well. In share capital, we have two type of capital, that is equity share capital and preference share capital. Equity share capital 3 lakh in previous year and 3 lakh 50,000 in current year. And preference share capital 2 lakh in previous year and 1 lakh rupees in current year. In reserve and surplus, we have security premium reserve, that is 5,000 in current year only, and surplus of statement of P&L 1 lakh rupees in previous year and 2 lakh 50,000 rupees in current year. And in other current liabilities, we have premium on redemption of debenture on preference share 10,000 से 5,000 rupees के हुए हैं. And in trade receivable, we have sundry debtor 1 lakh rupees in previous year and 2 lakh rupees in current year. और इसमें से हमने provision for doubtful debt less किया है 10,000 से, जो 15,000 हुआ है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो जब हम डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड करेंगे उसके साथ ये बैलेंस ऐड किया जाएगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 40,000 सोल्ड फॉर 25,000, यानी 15,000 रुपीज के लॉस में हमने उसको सेल किया. डेप्रिसिएशन 70,000 रुपीज चार्ज की जाती है. प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हमने 31 दिसंबर 2018 को 5% प्रीमियम पर किया. मींस जो आप देख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 1 लाख के हो रहे हैं, यानी 1 लाख का रिडेम्पशन कर रहे हैं. इसका 5% एक्स्ट्रा यानी 5,000 रुपीज हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं. और यही अमाउंट हमारा किस चीज का है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का. इंटरिम डिविडेंड 15% इक्विटी शेयर पे किया गया है 31 जनवरी 2019 यानी प्रीवियस ईयर के बैलेंस पर. और डिविडेंड जो है 12% के रेट से प्रपोज्ड है प्रेफरेंस शेयर्स पर. जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 1 लाख है और 2 लाख रुपीज करंट ईयर का है, तो हम प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे देते हैं, यानी 12% हम देंगे इसको किस पर? प्रीवियस ईयर 2 लाख वाले बैलेंस पर. और इक्विटी शेयर जो इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं 10% के. तो आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो 3 लाख से 350 हुई है, यानी 5,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो यही वाला अमाउंट है. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका एक हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. In previous part of video we have studied about some illustration related to the adjustment in cash flow statement. Today we are going to study some more illustration related to the adjustment. So let's start with the illustration number 55. In this illustration we have share capital, reserve and surplus, 10% debentures and long term borrowing, trade payable, other current liability and short term provision. And in asset side we have fixed assets, 10% investment, current investment, inventories, trade receivable and cash equivalent. In notes to account we have equity and preference share capital in share capital, reserve and surplus में security premium reserve and statement of P&L account, other current liability में premium on redemption of preference share and trade receivables में debtors और provision for doubtful debts दे रखे हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि मशीन हैविंग बुक वैल्यू 40,000 was sold for 25,000 and depreciation charge during the year 70,000.
प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडीम ऑन 31st December 2018 मींस इन द प्रीवियस ईयर। सो जो हमें डिविडेंड अगर चार्ज करना पड़ेगा तो वो करंट ईयर पे होगा और वो भी 5% प्रीमियम रिडेम्पशन हुआ है। An interim dividend at the rate of 15% was paid on equity shares on 31st January 2019। interim dividend 15% के रेट से पे किया गया है इक्विटी शेयर्स पर और डिविडेंड 12% प्रपोज्ड है प्रेफरेंस शेयर पर। प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीस और करंट प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपीस और करंट ईयर में 1 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम एडजस्टमेंट देखते हैं तो एक मशीन का हमको एडजस्टमेंट गिवन है यहाँ पे, यानी हमको जो अकाउंट प्रिपेयर करना है वो केवल मशीनरी का प्रिपेयर करना है। तो हम मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू हमको दोनों ही गिवन है, तो हम मशीनरी की क्लोजिंग और ओपनिंग वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मशीनरी की जो ओपनिंग वैल्यू है वो आपको बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स की साइड दे रखी है क्योंकि कोई और फिक्स असेट्स है नहीं टेंजिबल। तो 5,10,000 ये हमारी ओपनिंग वैल्यू हो गई। क्लोजिंग वैल्यू बाय बैलेंस सीबी के नेम से आ जाएगी करंट ईयर की जो टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं वो है 6,20,000 की, तो 6,20,000 यहां लिख देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 40 थी 25 में सेल की, तो सेल की बाय बैंक के नेम से 25,000 लिख देंगे और इसकी जो बुक वैल्यू थी वो थी 40,000 और हमने 25 में सेल किया मींस हमें 15,000 रुपीस का लॉस हुआ। ओवरऑल डेप्रिसिएशन 70,000 की थी जो हम यहां पर बाय डेप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे 70,000। अब हम टोटल लगा के बैलेंस निकालेंगे तो ये 620 प्लस 70 690 और 40 7,30,000 हो रहा है और 7,30,000 में से हम 5,10,000 माइनस करेंगे तो 2,20,000 की परचेज निकल कर आएगी जिसे हम शो करेंगे टू बैंक, यानी ये हमारी परचेज की वैल्यू है 2,20,000। चलिए अब कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं हम और पहली एक्टिविटी कौन सी होती है हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सबसे पहले को क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का डिफरेंस हमको गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको, प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, करंट ईयर में 250 हो गया, यानी 1,50,000 ये हमारा अमाउंट है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, तो ये आइटम हमको ऐड करने पड़ेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स और ये करंट ईयर का ऐड किया जाएगा। करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स था वो 12,000 रुपीस था, तो 12,000 रुपीस हम ये ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड हम हमेशा लेते हैं प्रीवियस ईयर का, तो ये हमको एडिशनल पॉइंट नंबर 5th में दे रखा है। ये एडिशनल पॉइंट था हमारा जो प्रपोज डिविडेंड था, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है 2 लाख रुपीस का था। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हम पहले इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हैं 4th पॉइंट में 15% हमें लगाना है इक्विटी शेयर पर और इक्विटी शेयर की आपको बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है। इक्विटी शेयर की प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी 3 लाख, तो 3 लाख रुपीस का अगर आप 15% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, तो ये निकल कर आएगा आपका 45,000 45,000 रुपए। और जब इक्विटी पे दे रहे हैं तो आप प्रेफरेंस पर भी देंगे। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आप लगाएंगे 12% के रेट से प्रीवियस ईयर का 2 लाख रुपीस की वैल्यू पर। तो आप यहां पे करेंगे यूज इसको कि यहां आपको वैल्यू गिवन है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आप करेंगे 12% जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है यानी 2 लाख, तो 2 लाख का 12% यानी ये हो जाएगा 24,000 रुपीस। जो एडिशनल पॉइंट में वो अमाउंट गिवन है आपको 2 लाख करंट ईयर प्रीवियस ईयर का 1 लाख इसी ईयर का, तो ये वैल्यू हो जाती है। आप देखिए अगर आप करेंगे तो 12 24 36 प्लस 45 यानी 81,000 आपको ये ऐड करने हैं। 150 का ये 81 का ये हो जाता है 2,31,000 रुपीस। ये हमारा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
अब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करने हैं। सेकंड एडिशनल पॉइंट में गिवन है कि डेप्रिसिएशन 70,000 रुपीस की है, तो डेप्रिसिएशन 70,000 लिखते हैं। हमें लॉस हुआ था यहाँ पर 15,000 रुपीस का, जो हमने अकाउंट बनाया है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और इसके 15,000 रुपीस को हम ऐड करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में देखिए आप डिबेंचर दे रखे हैं नॉन करंट लायबिलिटी में 10% इंटरेस्ट वाले। कब हमने इश्यू किए तो कुछ पता नहीं, और कुछ पता ना हो तो मैंने आपको बता रखा है कि प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% ऑन 1 लाख, क्योंकि प्रीवियस ईयर की वैल्यू 1 लाख रुपीस की है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीस, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो जाएगा। इसके अलावा आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू थी वो आपने लगाई थी 70,000 रुपीस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखिए ट्रेड रिसीवेबल, जो नोट्स टू अकाउंट का लास्ट आइटम है, 10,000 से 15,000 हो रहा है, तो इस वैल्यू को भी हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये 5,000 इंक्रीज हुआ है तो 5,000 इसको ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, 85, 90 यानी 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,31,000। अब देखिए इसमें से हमको एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी यहां पर गिवन है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप असेट साइड में देखें तो 10% इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, 10% इन्वेस्टमेंट और प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे लगाएंगे, यानी 10% 30,000 का, तो ये 3,000 नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप माइनस करेंगे तो 3,27,000 रुपीस, ये हो जाएगा आपका अमाउंट किस चीज का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखिए क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल के लिए करंट लायबिलिटी गिवन है ट्रेड पेबल, जो 46 से 133 हुआ है। अदर करंट लायबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, इसे अब हम यूज नहीं करेंगे, अभी हम ये लास्ट में यूज किया जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स हम यहां पर ऐड कर चुके हैं, लास्ट में माइनस भी करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट जो करंट असेट्स में है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, तो उसका यूज हमें यहां पर करना नहीं है। इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो ये हमें ऐड करनी होगी। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हुए हैं, तो देखिए हम ऐड करते हैं सबसे पहले इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल की वैल्यू 46 से 133 हुई, यानी 87,000 के इंक्रीज हुए हैं, तो 87,000 हमने यहां लिख लिया। इसके अलावा डिक्रीज इन एक करंट असेट्स भी है, करंट असेट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू 1 लाख से 90 की हुई है, यानी डिक्रीज हुई है कितनी, 10,000 रुपीज डिक्रीज हुई है। अब आप लेस का देख लो, लेस में दे रखा है इंक्रीज इन करंट असेट्स और ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 90 से 185 के हुए, यानी 95,000 रुपीज, ये हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो 95,000 क्या करेंगे, सॉरी नीचे देखिए ट्रेड रिसीवेबल में डेटर, क्योंकि प्रोविजन हम डाउटफुल डेट हम ऑलरेडी यहां पे एडजस्ट कर चुके हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है वो 1 लाख रुपीज हुई है, और ये क्योंकि लेस का आइटम है तो हम नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 87 प्लस 10 97 पॉजिटिव, 1 लाख नेगेटिव, यानी ये हो गया 3,000 नेगेटिव। अगर आप देखेंगे तो 3,000 रुपीज ये नेगेटिव बचेगा, 327 में से 3,000 एडजस्ट करेंगे तो ये कितना बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा हमारा 3 लाख, और ये देखिए मैं मिस्टेक की थी, 331 में 3 अगर माइनस करेंगे तो ये 328 होगा, और उसमें 3,000 हम माइनस करेंगे तो 3,25,000, ये क्या हो गया हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब हम यहां पर आगे की एक्टिविटी करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारा आ गया 3,25,000, और इसमें हम लेस करेंगे टैक्स, और ये कौन सा करेंगे हम, टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का।
प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो 24,000 है, तो 24,000 आप इसमें से माइनस करेंगे तो 3,01,000 ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखिए सेकंड हम लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में हमारी ये परचेज निकल कर आई थी, तो परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन निकली थी 2,20,000 रुपीज की, तो परचेज आउटफ्लो होता है नेगेटिव। हमने एक मशीन का पार्ट सेल भी किया था, तो ये इसे हम सेल भी लिखेंगे, सेल ऑफ मशीनरी 25,000। क्वेश्चन में आप देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है आपको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30 से 80 के हुए मींस आपने परचेज किए होंगे, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने के किए हैं आपने, ये किए हैं 55,000 के, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा 55,000 रुपीज का। 30 से सॉरी हुए हैं, तो ये 50,000 हुआ। और इस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुई थी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने यहां पर लेस भी की थी 3,000 रुपीज की, तो 3,000 ये रिसीव हो रही है, तो ये इनफ्लो है। 220,50 यानी 270 हमारा नेगेटिव है, और 28,000 ये हमारा पॉजिटिव है, तो मींस 2,42,000 नेगेटिव ये हो जाएगा हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हम नंबर 3 लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए आप शेयर कैपिटल देखिए, इक्विटी शेयर 3 से 350 के हुए हैं, मींस आपने इश्यू किया होगा, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 ये इक्विटी वाले हैं। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर आपने 2 लाख से 1 लाख के किए हैं, ठीक है, और इसमें भी प्रीमियम पर किए हैं 5%, यानी 1 लाख का शेयर आपने 5,000 एक्स्ट्रा यानी 1,05,000 में किया, और यही 5,000 अदर करंट लायबिलिटी जो आपको दे रखी है उसके अमाउंट की है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर की, तो ये हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1,05,000 लिखता हूं मैं, डायरेक्ट पूरा अमाउंट लिख देते हैं कि 1,05,000 रुपीज हुए हैं। अब देखिए मैं इसके ऊपर बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, विजिबल क्लियर हो, तो इसके आगे की एक्टिविटी में यहां लिख लेते हैं। अब देखिए इसके अलावा डिबेंचर्स हैं आपके, डिबेंचर की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख की हुई है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो कितने इश्यू किया आपने 1 लाख की, और ये हमारा इनफ्लो है। इस पर आपने इंटरेस्ट भी पे की है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमने यहां पर निकाली थी, आप देख सकते हैं 10,000 रुपीज, और डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना आउटफ्लो होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है हमारी। इसके अलावा आपको ने एक डिविडेंड भी पे किया है, प्रपोज डिविडेंड 24 का, तो प्रपोज डिविडेंड ये 24 ये भी नेगेटिव होता है। एक इंटरिम डिविडेंड है आपका जो आपने पे किया है, क्वेश्चन में दे रखा है, आपने निकाला था 45,000, ये भी आपका आउटफ्लो है क्योंकि आपने पे किया है। देखिए कितना अमाउंट हो रहा है ये आपका। इसके अलावा आपका कुछ रह तो नहीं गया, देख लीजिए डिबेंचर पे कर दिया, इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे आपने पे कर दिया, और 1,05,000 प्रेफरेंस शेयर का वो पे कर दिया, 1 लाख रुपीस के आपने डिबेंचर इशू कर दिए, और प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल लगा। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 है, यानी आपने जो शेयर इशू किए हैं वो 50,000 के ना होकर 55,000 के। अब आप देखिए टोटल लगाइए, 55, 10,000 एक पॉजिटिव है, 1,05,000, 10,000, 24 और 45 ये आपका अमाउंट नेगेटिव है, तो आप टोटल लगाएंगे तो ये बैठेगा आपका ओवरऑल 29,000 नेगेटिव, 29,000 नेगेटिव। ये हो गया आपका कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी का टोटल लगाइए आप, 3,01,000 पॉजिटिव ऑपरेटिंग, 2,42,000 नेगेटिव इन्वेस्टिंग, 29,000 नेगेटिव फाइनेंसिंग, तो ये 30,000 बैठेगा। ये कहलाएगा नेट इंक्रीज इन
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप इसमें ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप क्वेश्चन में देखिए आपको करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दे रखा है। तो ओपनिंग वैल्यू जो है करंट इन्वेस्टमेंट की 8 है और 42 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 8 और 42 यानी 50,000 आपको इसमें ऐड करना है। तो ये 80,000 के इक्विवेलेंट हो जाएगा यानी क्लोजिंग बैलेंस के। तो आप देख सकते हैं कि जो कैश एंड कैश करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग वैल्यू 60 है, क्लोजिंग वैल्यू और 70 बोला, तो 80,000 के ही इक्वल बैठ रहा है। मींस हमारी एक्टिविटीज का टोटल मैच कर रहा है। नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 57। इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास एक बैलेंस शीट है जिसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंडर में शेयर कैपिटल है जो प्रीवियस ईयर में हमारी वैल्यू थी इसकी 3 लाख और करंट ईयर में वैल्यू थी 350। रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000 से 70,000 का बैलेंस हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर्स हैं जो 1 लाख से 80,000 के हुए हैं यानी रिडीम हुए हैं। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो 25 से 15 की हुई है और ट्रेड पेबल है जो 60 से 165 के हुए हैं। असेट साइड की नॉन करंट असेट्स में फिक्स टेंजिबल असेट्स है 3 लाख से 4 लाख 10 की हुई है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50 से 40,000 रुपीज के हुए हैं। करंट असेट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू है 30 से 52 हुई है और ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60 के हुए हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस 118 है और ओपनिंग बैलेंस 1,15,000 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस में 2 टाइप के रिजर्व है। एक तो कैपिटल रिजर्व है 2,000 रुपीज का और जनरल रिजर्व है जो 20 से 33 का हुआ है और स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस 30 से 35 का हुआ है यानी प्रॉफिट 5,000 का है। मशीनरी टेंजिबल असेट्स में थी जिसकी ग्रॉस वैल्यू 350 से 470 हुई थी और जिसमें हमने डेप्रिसिएशन लेस किया था 50 और 60 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 15,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000 यानी मशीनरी जिसकी कॉस्ट 20,000 थी और जिसपे हमने 15,000 का डेप लगाया था वो 12,000 में सेल कर दी। मींस मशीनरी और डेप दोनों के ही अकाउंट बनेंगे क्योंकि दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% यानी 20% के इन्वेस्टमेंट सेल किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50 से 40 के हुए यानी हमने 10,000 के सेल किए तो 10,000 का 20% प्रॉफिट यानी 2,000 के प्रॉफिट पर और ये प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है जो बैलेंस हमें यहां पर गिवन है। डिबेंचर्स रिडीम किए गए हैं 1 अप्रैल 2019 को यानी प्रीवियस ईयर में यानी जो इंटरेस्ट लगेगी वो इंटरेस्ट लगेगी इसकी करंट वाले ईयर पर। टैक्स 15,000 पे हुआ है, यही ओपनिंग है यही क्लोजिंग है यानी ये ऊपर ऐड करना है यही माइनस करना है। इंटरिम डिविडेंड पे करना है 25,000 रुपीज, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया 10% के रेट से लेकिन शेयर होल्डर ने उसे अप्रूव नहीं किया है। तो अप्रूव नहीं किया है तो हमें ना तो इसे ऐड करना है ना ही लेस करना है यानी इस एक्टिविटी का हमें कोई भी यूज नहीं करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स का बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 57। In illustration number 57 we have share capital, reserve and surplus, 12% debentures in non-current liabilities, short-term borrowing that is bank loan and trade payable in current liability. In asset side we have tangible fixed assets, non-current investment. In current assets we have inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, and in notes to account we have surplus of capital reserve in reserve and surplus, general reserve and statement of P&L. Fixed tangible assets में मशीनरी की ग्रॉस कॉस्ट एंड लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन है यहाँ पर। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर अराउंड 15,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000 यानी 20,000 कॉस्ट की मशीन जिस पे 15,000 की डेप लगाई थी वो हमने 12,000 में सेल किया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 20% के प्रॉफिट पे सेल किए गए हैं और प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है जो हमको यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में गिवन है नोट्स टू अकाउंट में। डिबेंचर का रिडेम्पशन 1 अप्रैल 2019 को हुआ है यानी प्रीवियस ईयर में, यानी हमें करंट ईयर पे इंटरेस्ट लगानी है
टैक्स 15,000 रुपीज पे किया गया है, इंटरिम डिविडेंड 25,000 पे किया गया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 10% लेकिन शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया है। तो देखिए जब शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया है तो उन्हें उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि मशीनरी की ओपनिंग क्लोजिंग और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जो ओपनिंग वैल्यू है वो टू बैलेंस बीडी के नेम से आप मशीनरी की शो कराएंगे और मशीनरी की ओपनिंग ग्रॉस वैल्यू 3,50,000 यहां पर गिवन है और क्लोजिंग वैल्यू बाय बैलेंस सीडी के नेम से शो कराएंगे जो आपको गिवन है 4,70,000। 4,70,000। फर्स्ट एडिशनल पॉइंट में कह रहा है 20,000 मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो हमने 12,000 में बेच दी, यानी सेल किया बाय बैंक के नेम से 12,000। इस पर जो हमने डेट लगाई थी वो प्रोविजन फॉर डेट के नाम से आप शो कराओगे या एक्यूमुलेटेड डेट के नाम से, ये था 15,000 रुपीज। अब क्वेश्चन देखिए 20,000 की कॉस्ट की मशीन पर 15 का डेट लगा यानी 7,000 डेट रह गई इसकी, ठीक है, सॉरी 5,000 रह गई और 5,000 की मशीन को 12 में बेचा तो मैं प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट इस साइड आएगा 7,000 रुपीज का। अब आप बैलेंस निकालेंगे 470 और ये हो रहा है 27 यानी 4,97,000 और 4,97,000 में से आप 3,57,000 अगर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,40,000। यानी आपने जो परचेज की है मशीनरी वो 1,40,000 की है। अब देखिए आप एक प्रोविजन फॉर डेट या एक्यूमुलेटेड डेट का भी अकाउंट बनाएंगे क्योंकि इसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। तो डेट का जो ओपनिंग वैल्यू है वो आप बाय बैलेंस बीडी के नेम से लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000, नोट्स टू अकाउंट में गिवन है आपको। क्लोजिंग वैल्यू टू बैलेंस सीडी के नेम से लिखेंगे जो गिवन है आपको 60,000 और सेल किए हुए पार्ट पर जो आपने डेट लगाई थी 15,000 वो यहां पर आ जाएगी टू मशीन के नेम से, टू मशीन 15,000। अब आप बैलेंस निकालेंगे ये 75,000 हो रहा है, 75 में से आप 50 माइनस करेंगे तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन 25,000 की आएगी। अब देखिए आपको एक अकाउंट और बनाना है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की भी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट का और बनेगा तो इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू टू बैलेंस बीडी के नेम से दे रखी है आपको इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज की और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है आपको बाय बैलेंस सीडी के नेम से 40 की। अब देखिए 50 के इन्वेस्टमेंट 40 के रह गए, मींस आपने 10,000 रुपीस के इन्वेस्टमेंट बेचे और सेकंड एडिशनल पॉइंट में कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर, तो 10,000 का 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,000 और 10,000 के इन्वेस्टमेंट अगर 2,000 के प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितने में बिकेंगे 12,000 में। तो ये बाय बैंक के नेम से 12,000 रुपीस आ गया। अब आप बैलेंस निकालेंगे, ये हो रहा है 52,000 और ये भी 52,000 हो रहा है, ठीक है। पर ये जो प्रॉफिट है ये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो आप सिर्फ P&L ना डालकर कैपिटल रिजर्व के नाम से शो कराएंगे, क्लियर। अब आप कैश फ्लो बनाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारी एक्टिविटी कौन सी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और उसके लिए सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग और 30,000 का क्लोजिंग 35 का यानी प्रॉफिट है आपका 5,000 रुपीस का। अब देखिए 5,000 के प्रॉफिट में कुछ आपको इंटरिम डिविडेंड 25,000 दे रखा है तो इसे आप ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड और ये कितना है 25,000। क्वेश्चन में आपको टैक्स भी दे रखा है कि टैक्स पे हुआ है 15,000 तो ये भी ऐड किया जाएगा, टैक्स पेड 15,000 और इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 3,000 रुपीज की एक इंफॉर्मेशन आपके पास और है कि आपने
क्वेश्चन में आपको जर्नल रिजर्व दे रखा है जो आपको 20 से 33 का हुआ है, यानी ट्रांसफर किया है आपने, तो ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व 30,000। कैपिटल रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है, पर वो कैपिटल रिजर्व इस प्रॉफिट का है जो हमने यहां पे चार्ज कर लिया, इसलिए इसको शो नहीं कराएंगे। ये होता है 53,000 और 53 और 5 यानी 58,000। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल में हम क्या क्या ऐड करेंगे, यहां पर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का आपने अकाउंट बनाया था जिसमें डेप्रीशिएशन निकल कर आई थी 25,000, तो 25,000 की डेप्रीशिएशन लिखेंगे। इसके अलावा आप लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि डिवेंचर 1 अप्रैल 2019 पे रिडीम हुए हैं, तो आप डिवेंचर की इंटरेस्ट लगाएंगे लेकिन प्रीवियस करंट ईयर पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर की डेट दे रखी है। 12% 80,000 का 12% लगाएंगे तो 9,600 रुपीज, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो जाएगी। इसके अलावा आपने जो अमाउंट है आपका, ये हो रहा है आपका केवल 92,600, ये हो रहा है 25 और 9, ये होता है आपका 34,600, 58 और ये हो जाएगा आपका 92,600। इसमें अब आपको एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड लेस करनी है जो प्रॉफिट हुआ था मशीन को सेल करने से, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये आप 7,000 रुपीज लेस करेंगे तो 85,600 ये हमारा आ जाएगा। हालांकि प्रॉफिट ये भी हुआ था पर ये अपने P&L में ट्रांसफर नहीं किया, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो 85,600 ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं। तो करंट लायबिलिटी में बैंक लोन दे रखा है, फाइनेंसिंग होता है, ये आएगा नहीं। ट्रेड पेबल 60 से 165 के हुए हैं, ये इंक्रीज हुए हैं। करंट असेट्स में इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हुए हैं। तो ऐड का केवल एक ही आइटम है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और उसमें ट्रेड पेबल 1,05,000 के इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 60 से 165 की हुई है, बाकी के आइटम लेस के हैं। इंक्रीज इन करंट असेट, और उसमें पहला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू 30 से 52 की हुई है, यानी 22,000 ये इंक्रीज हुई है, ये लेस करेंगे। और एक है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 40 से 60 हुई है, यानी 20,000 ये इंक्रीज हुई है। तो देखिए 20 और 22, 42 नेगेटिव, 1,05,000 ये हो रहा है, तो यानी 63,000 पॉजिटिव ये अमाउंट हो गया। 85,600 प्लस 63,000, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 1,48,000, 1,48,600 ये हो गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें आप लास्ट में टैक्स और माइनस करेंगे जो आपने ऊपर ऐड किया था, क्योंकि एक ही वैल्यू गिवन है, तो 15,000 का टैक्स माइनस करेंगे तो 1,33,600 ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो सेकंड हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले मशीनरी की हमारी परचेज निकल कर आई थी 140 की, जो हमने अकाउंट बनाया था। तो परचेज ऑफ मशीनरी 140 और ये आउटफ्लो था। हमने एक मशीनरी का पार्ट 12,000 में सेल भी किया था, तो सेल ऑफ मशीनरी 12,000 ये पॉजिटिव होगा। एक हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए थे 12,000 में, इन्वेस्टमेंट सेल किए थे 12,000, तो ये भी हमारा इनफ्लो हो गया। तो ये केवल 12 और 12 24 पॉजिटिव और 140 नेगेटिव, तो यानी 1,16,000 नेगेटिव ये हो जाता है हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अब नंबर थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए आप शेयर कैपिटल देखिए 3 लाख से 350 की हुई है, यानी 3 लाख से 350 की, तो यानी हमने इश्यू किया है, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। इसके अलावा हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर 1 लाख से 80,000 के हुए हैं, तो मींस हमने रिडेम्पशन किया होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000, और रिडेम्पशन आउटफ्लो होता है। इस पर हमने इंटरेस्ट भी पे की होगी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 9,600, तो 9,600 ये भी आउटफ्लो। एडिशनल पॉइंट में इंटरिम डिविडेंड दे रखा है 25,000 का, तो ये भी हमने पे ही किया है, तो इंटरिम डिविडेंड 25,000 ये भी आउटफ्लो है। इसके अलावा करंट लायबिलिटी में बैंक लोन दे रखा है जो 25 से 15 का हुआ है, तो हमने पेमेंट किया हुआ जो कम हुआ है, तो पेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 ये भी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये हमारे आइटम है, और इन सबको ऐड और लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 14,600 नेगेटिव। तो मींस ये क्या कहलाएगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों का आप टोटल लगाइए, ऑपरेटिंग 133,600 पॉजिटिव, 1,16,000 नेगेटिव इन्वेस्टिंग, 14,600 नेगेटिव फाइनेंसिंग, तो ओवरऑल निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 3,000 पॉजिटिव, और ये क्या कहलाएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है 1,15,000, तो 115 और 3 1,18,000, और यही आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, तो यानी आपकी तीनों एक्टिविटी का टोटल एग्जैक्ट